السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو آج میں اعتکاف کے بارے میں جو ہے ضروری اور اہم مسائل بتانے والا ہوں۔ اعتکاف کے حالت میں کن کن صورتوں میں آپ جو ہے باہر نکل سکتے ہیں، اعتکاف کے حالت میں کیا کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنے کا ہے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، صرف 3-4 منٹ کی ویڈیو ہے، اور نئے لوگ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا، کیونکہ 3-4 دن کے بعد جو ہے تمام مسجدوں میں جو ہے مسلمان جو اعتکاف کی نیت کیے ہوئے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ جو آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اگر ایک بھی نہ کرے تو پھر یہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری بستی والے گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کے طرف سے ذمہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسجدوں میں، جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، تو وہاں اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف میں بغیر کیے ہوئے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی سوتا بھی ہے تو سمجھو کہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں کن کن صورتوں میں نکلنا ہے اور کن کن صورتوں میں نہیں نکلنا ہے۔ تو نمبر 1، طبعی ضرورت، مثلا استنجا وغیرہ کے لیے جو ہے، چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا، ان سب چیزوں کے لیے وہ جو ہے نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، شرعی ضرورت، مثلا اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، اضطراری ضرورت، مثلا مسجد منہدم ہو جانا یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا، تو ایسی صورتوں میں جو ہے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اچھا، طبعی ضرورت مثلا پیشاب، پخانہ، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ اسی طریقے سے معتکف یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے کسی عزیز کے گھر جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، یعنی اگر قریبی بیت الخلاء چھوڑ کر کوئی ان کے عزیز ہے، جان پہچان، تو وہاں پہ بھی وہ جا سکتے ہیں، لیکن کسی سے بات چیت کھڑے کھڑے نہیں کرنا ہے۔ اگر جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں پیشاب کے بعد قطرہ آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر مٹی استعمال کرتا ہے تو بحالات اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے اگر پیشاب آنے کا ان کو جو ہے خطرہ رہتا ہے اور اسی مقصد سے وہ ٹہل رہا ہے، کچھ دیر ٹہل کے پھر جو ہے مٹی استعمال کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے قضاء حاجت یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے سلام کرنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر کھڑے کھڑے ٹھہر کر باتیں کرنے لگا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلہ کو سمجھیے۔ آپ مثال کے طور پر شرعی ضرورت یا طبعی استنجا وغیرہ کے لیے آپ گئے، اب آتے جاتے کوئی مل گئے، ملاقات ہو گئی، آپ ان کو سلام کر سکتے ہیں، حال خیریت دریافت کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے رہ کر ان سے بات چیت کرنا تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے، اگر مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو کہ مسجد غسل کے پانی سے ملوث نہ ہو تو معتکف کے لیے مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بالاتفاق
जायज़ है, अलबत्ता गैर वाजिब गुस्ल मसलन बदन की सफाई ठंडक हासिल करने के लिए। ये मसला आप समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। अगर मस्जिद के शरई हुदूद के अंदर अगर गुस्ल खाना है तो आप किसी तरह का भी वज़ू, ऐसे ही बदन को ठंडक पहुंचाने के लिए भी आप गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं, अगर मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में शरई हुदूद में अगर है गुस्ल खाना। लेकिन अगर बाहर में है तो आप अगर नापाक हो गए, गुस्ल जनाबत कर रहे हैं, तब तो आपका दुरुस्त है, नापाकी वाले गुस्ल में आपको गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे ही अगर आप गुस्ल कर रहे हैं बदन को ठंडक सफाई, तो जायज़ नहीं है, ऐसे में एतकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर मुअतकिफ़ को एहतलाम की सूरत पेश आ जाए तो उससे एतकाफ़ फासिद नहीं होता, ताहम उसे चाहिए कि फ़ौरन मस्जिद से बाहर जाकर तहारत हासिल कर ले। यानी अगर एतकाफ़ में बैठे हुए हैं मस्जिद में मर्द हजरात, तो जैसे ही अगर एहतलाम हो जाए तो उससे एतकाफ़ टूटता नहीं है, लेकिन फ़ौरन जो है वहाँ से निकल जाए और पाकी हासिल कर ले, यानी नहा ले। इसी तरीके से अगर मुअतकिफ़ शख्स बीमार हो और उसे मस्जिद से बाहर जाकर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस मकसद से मस्जिद से बाहर जाने से उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, लेकिन उज़्र की बिना पर गुनाह ना होगा। यानी अगर कोई एतकाफ़ में बैठा हुआ है और बहुत सख्त बीमार पड़ गया, बीमार बहुत सख्त पड़ गया, तो ऐसी सूरत में वो डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर जाएगा तो एतकाफ़ तो टूट जाएगा, लेकिन गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से किन किन सूरतों में मैंने बताया, मस्जिद की इमारत मुनहदिम होने लगे तो आपको ऐसी सूरत में मस्जिद से निकल जाना चाहिए, दुरुस्त है, गुनहगार आप नहीं होंगे। लेकिन फ़ौरन आप दूसरी मस्जिद में जाकर एतकाफ़ में बैठ जाएंगे तो आपका एतकाफ़ बाकी रहेगा। किन किन सूरतों में मस्जिद की इमारत मुनहदिम होने लगे, मस्जिद के इर्द गिर्द आबाद लोग सब वहाँ से चले जाए और मस्जिद में बाजमात नमाज मौकूफ़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप वहाँ से हट जाइए, एतकाफ़ में ना रहे। इसी तरीके से कोई शख्स मुअतकिफ़ को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दे तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अब अगर आप दूसरी मस्जिद में फ़ौरन जाकर वो बैठ गया तो एतकाफ़ बाकी रहेगा, और अगर नहीं बैठेगा तो गुनहगार नहीं होगा। इसी तरीके से कोई जालिम मुअतकिफ़ को गिरफ़्तार कर ले, उस मस्जिद में रहते हुए अपनी जान या माल का दुश्मनों की तरफ से सख्त ख़तरा हो, तो ऐसी हालत में एतकाफ़ अगर तोड़ देता है तो गुनहगार नहीं होगा। इसी तरीके से है, अगर मुअतकिफ़ को अज़ान देने के वास्ते हुदूद मस्जिद से बाहर जाना ना गुरेज हो, मसलन लाउड स्पीकर बाहर कमरे में रखा हुआ, उसे मस्जिद में ना लाया जा सकता हो और गैर मुअतकिफ़ शख्स आज़ान देने वाला मुयस्सर ना हो, तो ये भी हाजत शरई में दाखिल है। ऐसा मुअतकिफ़ आज़ान देने के लिए बज़रूरत मस्जिद से बाहर जा सकता है। तो ऐसी सूरत में यानी आज़ान देने के लाउड स्पीकर वगैरह जो है वो बाहर रखा हुआ है, कमरे में है, तो ऐसी सूरत में वो अज़ान देने के लिए जा सकता है और फ़ौरन अज़ान देकर आ जाए। इसी तरीके से है, औरतें जो है कहाँ पे एतकाफ़ करेंगी, तो औरतें जो है एक कमरा मुतय्यन कर लेंगी और वहीं पर एतकाफ़ की नियत करके बैठ जाएंगी, और वहाँ से उनको बगैर शरई ज़रूरत जो है इस्तिंजा वगैरह या शरई ज़रूरत तबीई ज़रूरत के नहीं निकलना है। हाँ, इस्तिंजा वगैरह के लिए, इसी तरह वज़ू बनाने के लिए, ऐसी सूरत में जो है औरतें हमारी माँ और बहनें बाहर निकल सकती है। इसी तरीके से है कि एतकाफ़ की हालत में दुनियावी बातें नहीं करने का है, एतकाफ़ की हालत में अल्लाह का ज़िक्र करे, और इसी तरीके से एतकाफ़ की हालत में रीह खारिज करने से एतकाफ़ क्या टूट जाएगा। तो याद रखिए कि अगर मस्जिद के अंदर में कोई जो है अदब के ख़िलाफ़ समझता है री खारिज करने का, तो वो बेहतर है कि आप बाहर निकल कर आ जाए, उससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन किसी से बातचीत ना करे। और ना तो फिर जो है अगर मस्जिद में भी री खारिज कर ले तो उससे एतकाफ़ नहीं टूटता है। इसी तरीके से है कि एतकाफ़ करने वाली औरत अपने मुअतकिफ़ कमरे से निकलकर बिला ज़रूरत जो है घर के सेहन में आएंगी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। यानी एतकाफ़ में औरतें बैठती है और फिर बाहर निकल जाती है, सेहन वगैरह में घूमते रहती है, तो एतकाफ़
टूट जाएगा बगैर ज़रूरत के। मुअतकिफ़ा औरत को एतकाफ़ की हालत में शौहर से अलग रहना लाजिम है। अगर कोई औरत एतकाफ़ कर रही है तो उसको शौहर से अलग रहना जो है वो लाजिम है, ज़रूरी है। इसी तरीके से बाद बड़े शहरों में कसीर मंजिला इमारतों के किसी हिस्सा को नमाज के लिए ख़ास कर दिया जाता है और उसमें 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा जुमा और ईदैन की नमाज़ें भी होती है और वहाँ दूर दूर तक बाकायदा मस्जिद नहीं पाई जाती, तो उस जमात खाना में एतकाफ़ दुरुस्त होगा या नहीं, तो इस बारे में कोई सरीह जुज़िया नहीं है मिला। अलबत्ता बज़ाहिर मर्दों के एतकाफ़ के लिए मस्जिद शरई की शर्त से यही मालूम होता है कि वहाँ एतकाफ़ दुरुस्त ना हो, लेकिन दूसरी तरफ फ़ुक़हा ने औरतों के एतकाफ़ के मसला में उसकी मस्जिद बैत को मस्जिद के हुक्म में करार दे दिया गया है। तो इस वीडियो को शेयर करें, बहुत अहम मसाइल है। अच्छा, मोबाइल से बात कर सकते हैं यानी एतकाफ़ में जो बैठे हैं मस्जिद में, तो याद रखिए अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हो यानी खाना वगैरह मंगाना हो या कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बात, तो आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से दुनियावी बातें करना, हंसी मजाक करना, ये चीज़ ना करें। अगर कोई मोबाइल छोड़ देता है, नहीं रखता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।